Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, robotics. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to know about robotics, learn the composition of robots, recognize the characteristics of a robot, understand the types of robots and comprehend the uses of robots. So warm up में आपके कुछ questions पूछे गए हैं और जिनका आंसर आपने लिखना है, okay? Hello friends, you all know about artificial intelligence. Let's learn about one of the latest technology of AI, that is robotics. देखिए artificial intelligence के बारे में आप well aware होंगे, तो ये बहुत ही interesting chapter है जिसमें हम robots के बारे में पढ़ेंगे. Okay? What is robotics? The study of building effective and intelligent robots is the focus of the artificial intelligence field of robotics. Robots are artificial agents that behave in the real world. They can carry out the tasks that a person gives them. Robots are equipped with sensors that can recognize and pick up on physical information from the outside, such as heat, light, temperature, pressure, sound, bumps, and movement. To demonstrate intelligence, they have several sensors, a large amount of memory, and powerful processor cores. Additionally, they have the capacity to grow from their mistakes and mold themselves to the new surroundings. Electrical engineering, mechanical engineering, and computer science are combined in robotics to design, build, and use robots. Okay. देखिए रोबोटिक्स आपकी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिनका मेन फोकस है कि वो एक इंटेलिजेंट एंड इफेक्टिव रोबोट्स बनाए. ओके ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं जो रियल वर्ल्ड में बिहेव करते हैं. तो जो भी पर्सन को कोई वर्क देता है ये उसको परफॉर्म करते हैं, राइट. रोबोट में आपके सेंसर्स होते हैं जो रिकग्नाइज करते हैं और फिजिकल इन्फॉर्मेशन को आउटसाइड वर्ल्ड से पिकअप करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं. ओके जैसे कि हीट है, लाइट है, टेम्परेचर है, मूवमेंट है. ओके इंटेलिजेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उनके पास बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, बहुत सारी अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, पावरफुल प्रोसेसर कोर्स होते हैं. इसके अलावा इनकी ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मिस्टेक से ग्रो करते हैं और अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं न्यू सराउंडिंग्स में. ओके तो देखिए ये इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस ये कंबाइंड होते हैं आपके रोबोटिक्स में, जो डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं एंड रोबोट्स का यूज़ करते हैं, राइट. Composition of robots. Robotics use computer science, mechanical engineering, and electrical engineering to build, develop, and use robots. Robots' mechanical designs develop shapes or their forms to do a specific task. Electrical components power and regulate the machinery of robots. Robots operate under the control of some sort of computer software that dictates what, when, and how they perform things. Okay. अब देखिए कॉम्पोजिशन जो है रोबोट्स का वो है, आपको पता है कि ये कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनका यूज़ करता है. ओके तो रोबोट का जो मैकेनिकल डिज़ाइन है वो शेप डेवलप करता है या उनकी फॉर्म एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए. ओके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पावर एंड रेगुलेट करते हैं मशीनरी रोबोट्स की. इसके बाद रोबोट जो हैं वो ऑपरेट करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो इंडिकेट करते हैं कब, कैसे और कहाँ उन्हें परफॉर्म करना है चीज़ें, राइट. डू यू नो द टर्म रोबोट कम्स फ्रॉम द सिजैक वर्ड रोबोटा, दैट मीन्स drudgery और हार्ड वर्क एंड फोर्स्ड लैब. ओके ये रोबोट जो है ये आपके सिजैक वर्ड से है जिसका नाम है रोबोटा, जिसका मतलब होता है ड्रजरी या हार्ड वर्क जिसे कहते हैं या फोर्स्ड लैब. ओके रोबोट्स आर डेवलप्ड विद actuator used in robots convert energy into movement. Electric motors are required for rotational movement. Batteries, solar power, hydraulic or pneumatic power sources. Muscle wires contract by 5% when electric current is passed through them. Sensors provide knowledge of real-time information on the task environment. Okay. अब देखिए रोबोट्स आपके डेवलप्ड होते हैं विद, इनमें एक्चुएटर यूज होता है, ओके जो कि एनर्जी को मूवमेंट में चेंज करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर्स रिक्वायर्ड होती है रोटेशनल मूवमेंट के लिए. बैटरी, सोलर पावर्स या हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक पावर सोर्सेज होते हैं. मसल वायर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बाय 5% जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. ओके एंड सेंसर जो है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन द टास्क एनवायरनमेंट, राइट. Features of a robot. Robots resemble humans in terms of their physical composition. They are held together by a structure and they can move due to mechanical components. A robot is capable of doing actions and movement. A robot absorbs information about its surroundings and makes use of that data to carry out tasks as directed. It functions according to the programs installed in it and the programs can be changed accordingly.
Robots have sensors which enable them to see even in dark as well as detect the small movements which a normal person is not able to do. अब देखिए रोबोट जो है ह्यूमंस की जैसे दिखते हैं, उनके जो फिजिकल कॉम्पोजिशन होता है वो रिजेंबल करता है ह्यूमंस के साथ. ओके, अब ये इनको साथ में रखा जाता है स्ट्रक्चर्स के साथ. ओके, और ये मूव करते हैं बिकॉज ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स. आपको पता है, आपने देखा होगा जैसे पिक्चर्स में कि जो रोबोट है एक्शंस मूवमेंट सब कर सकता है. रोबोट जो है इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है उसके सराउंडिंग से, फिर उस डेटा को वो यूज़ करता है टास्क को कैरी आउट करने के लिए, जैसे उसको डायरेक्शन दी जाती है, जैसे डायरेक्ट किया जाता है. राइट, इसके बाद ये फंक्शन करता है जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड उसमें होते हैं उसके अकॉर्डिंग. ओके, और प्रोग्राम्स को चेंज भी किया जा सकता है अकॉर्डिंगली. रोबोट में सेंसर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डार्क में भी देख लेते हैं, एज वेल एज जो छोटा सा मूवमेंट होता है ना जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं डिटेक्ट कर पाता, ये उसे भी डिटेक्ट कर लेते हैं. ओके, रिमेंबर इट, जॉर्ज डेवॉल डेवलप द फर्स्ट डिजिटली ऑपरेटेड रोबोट. पहला डिजिटली ऑपरेटेड जो रोबोट था उसको जॉर्ज डेवॉल ने डेवलप किया था. टाइप्स ऑफ रोबोट्स. नंबर 1, aerospace. This is a broad category. It includes all sorts of flying robots, the smart bird robotic Seagull and the Raven surveillance drone, for example, but also robots that can operate in space such as Mars rovers and NASA's Robonaut, the humanoid that flew to the International Space Station and is now back on Earth. देखिए, अब रोबोट्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ रोबोट है आपका. एक तो एरोस्पेस बहुत बड़ी कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी है. इसमें आपके जितने भी जो फ्लाइंग रोबोट्स आते हैं वो आते हैं, जैसे स्मार्ट बर्ड रोबोटिक सीगुल है या रैवन सर्वेलेंस ड्रोन है. बट इसके अलावा देखिए जो रोबोट्स हैं ना वो ऑपरेट कर सकते हैं स्पेस में भी, जैसे कि मार्स रोवर्स है या नासास का रोबोनॉइड है, ह्यूमनॉइड जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आपका फ्लू किया एंड देन वापस वो आपके अर्थ पे अब. ओके, next is consumer robots. These robots are available for purchases and are kept as toys. They also carry out other jobs and errands for people. Aibo, the robotic dog, and Roomba, the vacuum machine are two examples. अब ये जो रोबोट्स हैं ये आप इनको परचेज कर सकते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल होते हैं और एज अ टॉय भी आप इन्हें रख सकते हैं. तो ये जॉब्स ये हमारे लिए कुछ जॉब्स करते हैं, जैसे कि आइबो जो रोबोटिक डॉग है, एक आपने ये जो रूम्बा ये वैक्यूम मशीन्स हैं. ओके, ये दो एग्जाम्पल्स आपके कंज्यूमर रोबोट्स के. नेक्स्ट इज डिजास्टर रिस्पॉन्स टूल्स. Robots used in disaster response to hazardous or dangerous duties such as looking for survivors after a tragedy. Consider the Packbot, a mobile robot used for hazardous material disposal and other risky duties. It can drive through mud, climb stairs and function in all weather. जो रोबोट्स आपके यूज़ होते हैं जैसे डिजास्टर रिस्पॉन्स में जो हैजार्डस और डेंजरस ड्यूटीज़ करते हैं, जैसे कि ट्रेजेडी हो गई कहीं पे, उसके बाद सर्वाइवर्स को देखना कि कौन कौन बच गया. ओके, पैक बोट आपका एक मोबाइल रोबोट है जिसको हैजार्डस मटेरियल डिस्पोजल के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरी रिस्की ड्यूटीज़ के लिए. ओके, ये मर्ड में आपका जा सकता है, स्टेयर्स क्लाइंब कर सकता है, हर वेदर में ये फंक्शन कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट्स. Industrial. The traditional industrial robot consists of a manipulator arm designed to perform repetitive tasks. An example is the Unimate, the grandfather of all factory robots. This category includes also systems like Amazon's warehouse robots and collaborative factory robots that can operate alongside human workers. ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रियल रोबोट की हम बात करें इसमें आपका मैनिपुलेटर आर्म डिजाइन होता है जो रिपीटेड टास्क को करता है. जैसे एग्जांपल है यूनिमेट. यूनिमेट को ग्रैंडफादर कहा जाता है सारे फैक्ट्री रोबोट्स का. ओके, इसमें आपका देखिए जैसे अमेजॉन वेयर हाउस रोबोट्स है ये इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है. ओके, एंड आपके जो कोलैबोरेटिव फैक्ट्री रोबोट्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं अलॉन्गसाइड ह्यूमन वर्कर्स. ओके, नेक्स्ट मेडिकल रोबोट्स. सिस्टम्स लाइक द विंसी सर्जिकल रोबोट, बायोनिक prosthesis and robotic exoskeletons are examples of medical and healthcare robots. So ये जो आपके robots हैं, the Vinci surgical robot, bionic prosthesis and robotic exoskeletons, ये medical और healthcare robots के examples हैं आपके. Okay. Applications of robotics: conservation, fighting forest fires, manufacturing, working in factories, finding and carrying items in warehouses, companionship, providing company to elderly individuals, healthcare, assisting in surgical procedures, delivery, completing food delivery and last mile fulfillment, household, vacuuming and mow the grass, rescue, undertaking search and rescue missions after natural disasters, military operations, detecting landmines in war zones.
अब देखिए एप्लीकेशंस क्या है रोबोट्स के। सबसे पहले तो देखिए फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ओके, जैसे कि वेयर हाउस में कोई चीज़ को ढूंढते हैं, उसको कैरी करते हैं। एल्डरली इंडिविजुअल है, उनको एक कंपनी मिल जाती है, ओके, सर्जिकल प्रोसीजर जो उसमें हेल्प करते हैं, फूड डिलीवरी को कंप्लीट करते हैं, और घरों में जैसे कि ग्रास काटने में या जो वैक्यूमिंग में हेल्प करते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में जैसे डिजास्टर आता है उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में हेल्प करते हैं। एंड मिलिट्री ऑपरेशंस में जैसे कि वॉर जोन्स है वहाँ पे लैंड माइंस को डिटेक्ट करना, इन सब के लिए रोबोट्स का यूज़ किया जाता है, राइट। Let's recall. Robots are artificial agents that behave in the real world. Robotics is a domain in artificial intelligence which deals with the study of creating intelligent and efficient robots. Robots resemble humans in terms of their physical composition. Robots are developed with batteries, actuator, muscle wires, and sensors. Robots used in disaster response do hazardous or dangerous duties such as looking for survivors after a tragedy. Students, I hope आपको ये interesting लगा होगा chapter, and chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.